Hey friends, this is Dr. Muzammil Rahman and you are watching my official YouTube channel, that is Dr. Muzammil Rahman. और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक. May Allah bless all of us and may the mercy of Allah will shower all of us inshallah in this holy month of Ramadan. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल टॉपिक की, that is BRS. Yeah, you got me right. What? BRS. That is Bank Reconciliation Statement. Bank Reconciliation Statement. So if you are new to this channel, please do subscribe, do support, and thanks a lot for your love and care and share. अब सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मैं करता हूँ कि the way you have supported me and the energy you have shown, the love that you have given us, you owe a lot. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले किसकी? BRS की, that is Bank Reconciliation Statement. When you look at the whole, the etymology, the history and the cycle of full accounts, you will never see this chapter. अकाउंटिंग के पूरे साइकिल में आप इस चैप्टर को कहीं नहीं पाओगे. So it's a supplementary chapter that you will see in every accounts. यानी अकाउंट्स के लिए it's a supplementary chapter. लेकिन बहुत क्रिटिकल और बहुत सेंसिटिव एंड द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर दैट यू मस्ट लर्न. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट किया कि सर आप इस पर एक टॉपिक तो बना लीजिए क्योंकि दे आर फुल ऑफ कंफ्यूजन्स. सो दे आर इनटू द मैस कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी, क्या करना है इस चैप्टर में. सो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स. सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. तो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे पूरी लगन से कि इस चैप्टर को हम पूरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. सो bear with me for these 30 to 40 minutes and I'll masterize you in BRS, Bank Reconciliation Statement. Now let's look at the definition first. What does this BRS mean? Bank Reconciliation Statement. You know, first, bank, we know it's a financial institution that provides us or lends us money at the time when we need, and it accepts our savings. And a bank एक ऐसा financial institute होता है हमारी सोसाइटी में, हमारे environment में, जो हमें financial support भी provide करता है at interest और हमारे पैसों की हिफाजत भी करता है and provides us the interest as well. And there are multiple number of more works, additional activities being performed by every bank. तो वहाँ पर हमने नहीं जाना है. So bank we know we have just like in our own state. हमारे state में कौन सा सबसे popular bank, that is J&K Bank. We have HDFC, we have ICICI, we have IDBI, and we have Yes Bank and many more. We have private banks, we have public, we have commercialized, we have non-commercialized, etc. etc. तो reconciliation हम किस चीज़ को कहते हैं? This is a technical term that you must understand. If you go through the lexical definition, that is the dictionary meaning of this word, you will see that when group of people or maybe two people agreed upon after they have argued. यानी हमारे पास we have two groups of people. दो ग्रुप है हमारे पास. First they have argued. मतलब उनमें बनती नहीं थी. There was some argument, there was a fight, we'll call a literal fight, a literal war between these two. किसी भी चीज़ पर वो argue कर रहे थे एक दूसरे के साथ. लेकिन finally they have come to the mutual consent, to an agreement where they both feel satisfactory. So when they reach to this level, जब वो उस level पर पहुँचते हैं कि when they feel satisfactory, यानी अब ये ग्रुप भी राजी हुआ और ये ग्रुप भी राजी, इसी राजी होने को हम क्या कहते हैं? We call it reconcile. For example, let's take an example. There's a fight going on between the husband and the wife. किसी भी चीज़ को लेकर, तो they are arguing with each other. And now finally, when they have reached to an agreement where they both feel satisfactory to abide, तो उस वाली कंडीशन को हम what we call that? We simply call that reconciliation. Reconciliation. And statement, you know statement, it's the document, a formal structure where rules of debit and credit are not to be followed.
उस वाले स्टेट उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट स्टेटमेंट. सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो अ पीस ऑफ पेपर और a summarized sheet where two things are to be reconciled, agreed upon. और वो दो चीज है क्या? So first of all, you must go deep into the fundamentals of this accounts, of this chapter. Then definitely you will learn it. तो सबसे पहले आपके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए, तभी हमें ये चैप्टर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपके जहन में, आपके ब्रेन में चला जाएगा. आई प्रॉमिस इट. कोई नहीं रोक सकता आपको समझने से. बट यू नीड टू हैव अ कंक्रीट बेस. आपकी बेस काफी कंक्रीट होनी चाहिए. ग्रेट बेटा. तो हम बात करते हैं किसकी? BRS की. दिस इज BR and S. That stands for bank reconciliation. STATEMENT. बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट. ग्रेट. तो बैंक हमने पढ़ा कि बैंक इट्स एन इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इदारा दैट एक्सेप्ट्स एंड लेंड्स द मनी. ग्रेट. अच्छा, ये जो रिकॉन्सिलेशन टर्म है, व्हाट डज दिस रिकॉन्सिलेशन मीन? सिंपली वी से दैट when two people or more than two means a group of people have fighted, they do have a logical war, and after that war, after that argument, now they have, you know, they have come to a satisfactory result. यानी दो ग्रुप्स थे, there was a group A and group B. किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी चीज को लेकर there was a fight going on between these two groups. And finally, after a lot of argument, they have come to a satisfactory result. Means now A and B, they have handshaked with each other. And once they feel satisfactory, जैसे ही A और group B इनमें mutual understanding पैदा हुई, when they have got satisfied, so we call them that A and B have got reconciled, satisfied after a logical war, after an agreement, after an argument, sorry. कि जब भी दो बंदों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में एक वार चल रहा था, एक फाइट चल रही थी, एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी टॉक को लेकर, एंड आफ्टर दैट लॉजिकल वार एंड डिबेट बोथ हैव गॉट एग्रीड, किसी भी चीज को लेकर वो अब एग्री हो चुके हैं. सो वी कॉल दैट व्हाट? वी कॉल दैट रिकॉन्साइल व्हेन दे गेट बैलेंस्ड. And statement, we know it's a formal document or a piece of paper where this reconciliation is done. Great. अब हमारे पास क्या डिफिनेशन आ चुकी है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की? इट इज अ स्टेटमेंट now we are talking about this bank reconciliation statement. So it is a statement in which the two books get agreed. Okay, it's a statement, एक ऐसा piece of paper, एक ऐसा पेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, BRS bank reconciliation statement, in which two books get agreed after आफ्टर डिसएग्रीमेंट. पहले हमारे पास दो बुक्स थी, अब वो बुक्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, दैट विल डिस्कस इंशाल्लाह इन डिटेल. और एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमने प्रिपेयर किया जिसमें ये वाली दो बुक्स जो है ना, दे हैव गॉट एग्रीड आफ्टर डिसएग्रीमेंट. पहले वो एग्री नहीं हुआ करती थी. नाउ आफ्टर मेकिंग दिस BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, नाउ द बोथ बुक्स हैव गॉट बैलेंस्ड. अब दोनों किताबें क्या हो चुकी हैं? बैलेंस्ड. तो इसे उस स्टेटमेंट का नाम हमने क्या रखा है? वी कॉल इट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. ग्रेट. देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट ऑल ऑफ अस मस्ट कीप इन माइंड, यू नो, बिफोर लर्निंग दिस चैप्टर. बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट ऑल ऑफ अस मस्ट कीप इन माइंड बिफोर लर्निंग दिस BRS, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट
पढ़ने से पहले देयर आर फ्यू इश्यूज, फ्यू थिंग्स दैट ऑल ऑफ अस मस्ट नो। सबसे पहला कि देयर इज अ यूनिवर्सल रूल, अ यूनिवर्सल लॉ। अब देखो ये यूनिवर्सल लॉ हमें कहता क्या है। दिस लॉ सिंपली स्टेट्स दैट व्हेन टू or more than two groups or individuals record same event must get gets tallied or balanced, tallied or balanced। अब देखो ये रूल हमें क्या कह रहा है, ये दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट कि जब भी दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे या ग्रुप्स record the same event or same transaction, it must get tallied at the end। जब भी दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे या दो ग्रुप्स किसी भी इवेंट को, एक ही इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट मस्ट गेट टैलीड एट द एंड। फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई हैव few students in my class, say let's assume कि this is a right angle triangle, sorry, now this is a right angle triangle। इस लॉ की मैं एग्जांपल दे रहा हूं। So this is 2 centimeter and this is 3 and this is 9 centimeter। This is a right angle triangle and I have 5 students in my class। या दो ही स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स, एंड इफ आई एम सेइंग दैट यू मस्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। जो भी बच्चे होंगे ना मेरे क्लास में, उनका एरिया जो है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, ना बैलेंस्ड आना चाहिए। अगर ए का एरिया निकल रहा है 25 सेंटीमीटर्स, बी का भी निकलना चाहिए व्हाट 25 सेंटीमीटर्स, सी का भी निकलना चाहिए 25 सेंटीमीटर, बिकॉज दे ऑल आर रिकॉर्डिंग दी सेम इवेंट। ट्रायंगल तो एक ही है, इट्स राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके साइड्स भी बिल्कुल कॉमन ही है। दिस इज 2 सेंटीमीटर फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी, फॉर डी एंड फॉर ई, और दिस द हाइपोटेन्यूज इज 9 एंड द बेस इज 3। सो व्हेनेवर आई एम सेइंग देम दीस स्टूडेंट्स कि यार इसका एरिया मुझे चाहिए, अब जो एरिया ए ने निकाला वही बी का भी होना चाहिए, वही सी का भी होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज दे आर जस्ट रिकॉर्डिंग द सेम इवेंट। यही हमने पहला यूनिवर्सल लॉ याद रखना है कि जब भी हम बीआरएस में जाते हैं ना, बीआरएस का चैप्टर पढ़ने जाते हैं वो, सो वी मस्ट रिमेंबर दिस यूनिवर्सल लॉ, दैट इज कि जब भी व्हेन 2 or more than 2 people or groups record the same event or transaction, it must get tallied or it must get balanced at the end। ये हमेशा टैली होनी चाहिए और ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए। Why? Because they are recording the constant event। सभी एक ही इवेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट मस्ट गेट टैलीड एट द एंड ऑफ द डे। तो ना होना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर रिकॉर्डिंग द सेम इवेंट। नंबर सेकंड, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट that all of us must keep in mind before going into the details of BRS bank reconciliation statement, the second rule, the second law that all of us must keep in mind is that द सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पर कौन कौन सी बुक हमारे पास रहती है जिसको आपने रिकॉन्साइल करना होता है। द फर्स्ट बुक दैट वी हैव इज द कैश बुक एंड द सेकेंड बुक इज द पास बुक। यही दो किताबें हैं दैट विच गॉट डिसएग्रीड। अब ये डिसएग्री हो रही है, एंड फॉर दीज टू बुक्स वी आर सेट टू बी मेक ए रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यही दो किताबें हैं, एक तो पासबुक रहती है हमारे पास, एक तो कैश बुक रहती है, एक कैश बुक एक पासबुक। जब भी इन दो किताबों में कोई भी डिफरेंस आ जाए, व्हेन दे गॉट डिसएग्रीड, उसके बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे अभी। अब देखो ये पासबुक और ये कैश बुक कहाँ से, ये पासबुक और ये कैश बुक कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, हाउ
they literally got into existence. देखो होता क्या है, just let me teach you from the basics actually. अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव ओपनड अ बिजनेस, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आई हैव ओपनड अ बिजनेस, ग्रेट, एक बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, से विद मुजम्मिल एंड को, मुजम्मिल एंड को, आई हैव स्टार्टेड दिस कंपनी, so this is Muzammil M and Co. This is a company. So when we will start this company, it's obvious कि हम अपने nearest bank पर जाएंगे and will open an account for our business. This is the basics that you need to have concrete, and then you can go into the details of BRS. ये Muzammil and Co. This is my company, and once we have opened this company, what I did, I went to the bank, I went to G&K Bank, and from this bank I have opened an account अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पर हमने कौन सा एक अकाउंट को खोला अपने बिजनेस के लिए। सो वंस यू वेंट टू द बैंक, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, यू कैन ओपन करंट अकाउंट, savings account, you can open fixed deposits account, etc, etc. We have multiple number of choices. So simply we have opened a simple account, that is savings account. क्योंकि अब बिजनेस और बैंक में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसे कोई कैश हम यहाँ पर डिपॉजिट कर लेंगे कभी कभार, एंड समवेयर विल विथड्रॉ द कैश, कभी हम बैंक से लोन प्रोवाइड कर, कभी हम बैंक से लोन भी विड्रॉ कर सकते हैं, वी कैन टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, एंड समटाइम्स वी कैन डिपॉजिट आवर कैश इनटू द बैंक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभार हम क्या करेंगे कि अपना कैश जो है ना, हम बैंक में इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। वी कैन टेक आल्सो द लॉकर फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक फॉर आवर बिजनेस, कभी कभार हम बैंक का लॉकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पज। सो देयर आर मेनी ट्रांजैक्शन दैट ऑकर बिटवीन द बिजनेस एंड द बैंक। ग्रेट, यहाँ पर एक चीज और हमने याद रखनी कि जब भी हम when we open the account, maybe or an individual, or as an individual, or as well as the bank, जब भी हम जाएंगे किसी भी बैंक पर, चाहे आप इंडिविजुअल हो या कोई बिजनेस हो, तो बैंक प्रोवाइड्स यू अ स्मॉल बुकलेट जिसका नाम हम रखते हैं पासबुक। पासबुक एक छोटी सी बुकलेट आपको दी जाती है, जिस पर या जिसका दूसरा हम नाम लिखते हैं बैंक स्टेटमेंट, वी आल्सो कॉल इट BAN की, बैंक STATEMENT, बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर बैंक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि बिजनेस ने कितना पैसा हमें दिया, हमसे कितना वापस ले लिया, यानी विड्रॉ कितना, और उसका बैलेंस कितना है हमारे पास। सो ऑल द डिटेल्स ऑफ द बैंक, यानी बैंक जितनी भी डिटेल्स होंगे ना बिजनेस की, इस पासबुक में वो रिकॉर्ड कर लेगा। ग्रेट, लेकिन एज अ बिजनेस हम भी यार तो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं अपनी जगह पर। वी रिकॉर्ड इन अ बुक कॉल्ड कैश बुक। अगर आपको याद होगा, जब हम डबल कॉलम कैश बुक बना लेते हैं ना, तो वी प्रिपेयर इट इन द कैश बुक। हम जो रिकॉर्ड करते हैं इन द बिजनेस, किस किताब में? कैश बुक में। और बैंक कौन सी किताब में रिकॉर्ड करता है? बैंक प्रिपेयर्स इट इन द पासबुक। ये है बैंक की किताब जिसे हम पासबुक कहते हैं, और ये बिजनेस अपनी जगह पर मेंटेन ये वाली किताब करता है जिसका नाम कैश बुक है। सो व्हेन दीज टू बुक्स गेट डिसएग्रीड, कौन कौन सी किताब? ये वाली किताब, एक तो कैश बुक और एक पासबुक। याद रखना है, कैश बुक इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस और बाय एन इंडिविजुअल इफ यू वांट्स टू, और पासबुक जो है ना, इट्स द डेटा मेंटेन्ड इन द पासबुक, इट्स बीन डन बाय द बैंक, क्योंकि बैंक को भी रिकॉर्ड रखना है और हमने भी अपनी जगह रिकॉर्ड रखना है। जब ये दो किताबें डिसएग्री हो जाए, वो भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, एंड व्हाट आर द लॉजिकल रीजंस व्हाई दीज बुक्स गेट डिसएग्रीड। लेकिन सिंपली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने क्या याद रखना है कि जब दो किताबें डिसएग्री हो, और कोई आपसे कहेगा कौन कौन सी किताब, द फर्स्ट बुक इज द कैश बुक विच इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस, एंड द सेकंड बुक इज द पासबुक विच इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। यहां पर इस वाली किताब में कौन डिटेल मेंटेन करता है? बैंक। और इस वाली किताब में कौन मेंटेन करता है? इट इज बीन प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस। ग्रेट, दिस इज द सेकंड थिंग।
Okay, now the third thing is that the BRS, that is the bank reconciliation statement, will always be prepared by the account holder. नंबर थर्ड, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने याद रखनी है, दैट इज BRS, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, विल बी prepared by the account holder, by the account holder means by the client, by the customer. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो याद रखनी है अपने. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि शायद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बैंक ही बनाता है. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सिंपली BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर. यानी जब भी कैश बुक, अभी जो हमने आपसे कहा था CB एंड PB, दैट इज पासबुक, ये है कैश बुक और ये है पासबुक, जब ये दो किताबें डिसएग्री हो जाए एंड इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द अकाउंट होल्डर बिफोर अप्रोचिंग टू द बैंक, क्योंकि ये दो किताबें हमने अभी पढ़ा कि जब कोई भी इवेंट हो जाए, एक इवेंट हो जाए या ट्रांजैक्शन हो जाए, कि इट ऑलवेज मस्ट गेट टैलीड. अब ये दो बुक्स हमें टैली नहीं हो रही है. फर्स्ट द अकाउंट होल्डर विल प्रिपेयर BRS. अब वो चाहेगा जरूर कि यार ये रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों आ चुका है वहां पर, अब ये और ये किताब आपस में क्यों नहीं मेल हो रही है, क्यों ये डिसएग्री हो रही है. तो इस वाले स्टेटमेंट को याद रखना है हमने कि BRS विल ऑलवेज बी प्रिपेयर बाय द अकाउंट होल्डर, यानी जो भी अकाउंट होल्डर हो. तो से अभी मैंने M&Co की एग्जांपल दी थी, मुज़म्मिल एंड को, हमारा जो बिजनेस है, अगर हमारे कैश बुक में और हमारे पासबुक में, इस वाले बिजनेस में, ये है हमारा कैश बुक और ये है हमारा पासबुक, अगर इन दो में कोई भी डिफरेंस आ रही हो, इफ दे आर नॉट गेटिंग बैलेंस्ड, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अस, हमारा जो अकाउंटेंट होगा ना यहाँ पर, सो ऑन बिहाफ ऑफ अस आवर अकाउंटेंट विल प्रिपेयर द BRS, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. So then we have one more, the point number 4, that is most important out of all these points, जिससे बहुत सारे students usually get confused कि यार ये है क्या, कि यहाँ पर देखो क्या याद रखना है हमने. point number 4, point number 4 हमने important ये चीज़ याद रखनी है कि whenever an event or a transaction is being recorded by two individuals, they have to record it in the opposite direction. Means whenever a transaction is recorded by two individuals, they will record it in opposite direction, that is opposite to each other. For example, अभी हम बात कर रहे थे M&Co की. M&Co, this is our business, and here we have one employee called A. M&Co एक बिजनेस है, हमारा बिजनेस है. A एक एम्प्लॉय है. आफ्टर 1 month A has received a salary of ₹10,000 from the business. अच्छा, 1 महीने बाद क्या हुआ कि हमने A को ₹10,000 एज अ सैलरी पे की. अब देखो होगा क्या, बिजनेस भी रिकॉर्ड कर लेगा और A भी इसी इवेंट को, इसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा. बोथ विल डू द रिकॉर्डिंग. अगर ये भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है और A भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है. अब फॉर दिस M&Co दिस ₹10,000 विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस. हमारे लिए तो ये एक्सपेंस है, हमारे से तो पैसा जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस 10,000 विल बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम बाय मिस्टर ए. के लिए तो ये इनकम है, इवेंट एक ही है, हैपनिंग एक ही है, बट फॉर द बिजनेस दिस इज एन एक्सपेंस, एंड एट द सेम टाइम द सेम इवेंट, द सेम ट्रांजैक्शन फॉर मिस्टर ए इट्स एन इनकम. यही चीज हमें याद रखनी है कि जब भी एक इवेंट, व्हेन टू
when whenever a transaction is recorded by two individuals, they will record it in the opposite direction. मतलब यहाँ पर वो चीज जब डेबिट होगी, at the same time it will be credited here, क्योंकि हमारे लिए तो expense. So we know that in the nominal we say debit all expenses and losses. हम इस 10,000 को इस वाले M and Co में रिकॉर्ड कर लेंगे, इसे expense. We'll say that this salary account debit to cash account. कैश तो हमसे जा चुका है, but at the same time A will record it what? Cash account debit to salary account, क्योंकि M के लिए वो इनकम है, but at the same time हमारे लिए वो एक्सपेंस. लेकिन दोनों जगह 10,000 ही रिकॉर्ड होना चाहिए. वही हमने कहा था पहले पिछले रूल में कि जब भी एक इवेंट हो एंड if it is been recorded by two or more individuals, it always get balanced. देखो यहाँ भी हमने भी 10,000 ही रिकॉर्ड किया, इस A ने भी 10,000 ही रिकॉर्ड किया. So in both the books it will definitely get tallied, क्योंकि हमने हिसाब तो 10,000 ही यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया. So this is the rule number 4 that you must keep in mind before doing your BRS, that is bank reconciliation statement. Now we will get the exact definition of BRS. बैंक रिकॉन्सिलेशन की अब रियल डेफिनेशन एट द एंड हम लिखेंगे आफ्टर लर्निंग दीज 4 रूल्स. जस्ट कीप दीज रूल्स इन माइंड. डेफिनेटली दिस गोना मेक योर जॉब वेरी मच इजियर एंड सिंपल. अब हम BRS की बात कर रहे हैं. BRS देखो, अब मैं फुल डेफिनेशन बोल रहा हूँ इसकी. इट इज अ स्टेटमेंट prepared by the account holder at the time when two books get disagreed. When two books get disagreed, that is Cashbook and Passbook. Now this is the complete definition of BRS, bank reconciliation statement. अब देखो क्या बैंक reconciliation statement क्या है? It is a statement, a document, a piece of paper prepared by the account holder. यानी एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा पेज, एक ऐसा सेटअप जो हम प्रिपेयर करते हैं, तब कोर करता कौन है? अकाउंट होल्डर, वन हुज अकाउंट दिस इज. एट द टाइम, उस वक्त, व्हेन टू बुक्स गेट डिसएग्रीड, जब दो बुक्स आपस में बैलेंस ना हो रही हो, एक तो कैश बुक और एक पासबुक. अगेन जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि कैश बुक इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस and at the same time the cash book is prepared by the business and the passbook is prepared by the bank. Hope you got this. Passbook is prepared by the bank. Great. Now let's move to the next topic, next content of the same topic actually, BRS. Great. अब देखो होगा क्या. This is M and Co. And this is the bank. This is J&K Bank, most popular bank in our state. Great. अब हम कौन सी बुक बना लेंगे? We prepare cash book. At the same time, our bank will prepare passbook. हमारा जो बैंक है ना, इट विल प्रिपेयर व्हाट? इट विल प्रिपेयर द पासबुक. हम कौन सी बुक बना लेंगे? कैश बुक. एंड एट द सेम टाइम आवर बैंक विल प्रिपेयर द पासबुक. सो दिस इज कैश बुक and this is passbook, and we know for every, this is actually an account, we have this debit and this is credit. Here we have this debit and this is credit. Left side of every account is debit and right side of every account is the credit. Left here means plus and the credit is here minus. अब देखो यहाँ पर left side debit side, यहाँ भी left side debit, this is plus and here it will be minus and here
it will be plus, because they will up record in an opposite way. जो यहाँ पर प्लस होगा वो यहाँ पर माइनस आएगा, जो यहाँ पर माइनस आएगा वो वहाँ पर यानी जो यहाँ पर डेबिट चीज होगी वो यहाँ पर क्रेडिट होगी, बिकॉज मैंने आपसे पहले ही रूल आपको पढ़ाया कि when a transaction is being recorded by two people, two individuals, and it will be recorded opposite each other. देखो हुआ क्या, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस दैट इज एमएन को एंड बैंक में हुई, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इज दिस बिजनेस हैज डिपॉजिटेड 1 लाख इनटू द बैंक अकाउंट. अब एम एंड को ने अपने बैंक अकाउंट में क्या किया कि डिपॉजिट किया हमने कितना, 1 लाख रुपीस. अब देखो होगा क्या, सबसे पहले हम अपनी बुक में जो हमारे बिजनेस का अकाउंटेंट होगा ना, सो इट विल रिकॉर्ड इट फ्रॉम दिस साइड दैट इज रुपीज 1 लाख ऑन द डेबिट साइड. Why? Because we have learned the rule that is debit the increase. तो जब हम अपने बैंक अकाउंट में ये when we put this 1 lakh into the bank account, so bank account as per the modern approach, as per the westernized approach, bank is an asset to us, और asset का रूल है debit the increase, ये वहां पर जमा होगा as an asset. At the same time, the bank will record it on the credit side. तभी आपने देखा होगा जब भी आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं ना, यू इंस्टेंटेनियसली गेट अ मैसेज दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्योंकि बैंक के लिए हमारे लिए तो ये एसेट है. वी हैव पुट आवर एसेंशियल इंपॉर्टेंट कैश एंड वी पुट इट इनटू द बैंक. फॉर वी इट्स एन एसेट, हमारे लिए क्या है ये एसेट. एट द सेम टाइम बैंक के लिए है ये लाइबिलिटी, उनके लिए तो कर्जा है क्योंकि उनका तो खुद का पैसा है ही नहीं. और लाइबिलिटी का रूल ही यही है कि क्रेडिट द इंक्रीज, जब जब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट कर लीजिए. होप यू गॉट दिस. और यहाँ पर हमने इसको डेबिट में रिकॉर्ड किया और यहाँ पर हमने क्रेडिट में रिकॉर्ड किया. यहाँ पर बैंक खुद क्रेडिट रिकॉर्ड करा क्योंकि बैंक के लिए कर्जा इट्स अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक, बट फॉर वी इट्स एन एसेट. And after some time, after a few days or few months, what we did, we have just withdrawn rupees 40,000. कुछ महीने बाद, कुछ टाइम बाद हमने यहाँ से विड्रॉ किया कितना, 40,000. अब हमारा एसेट कितना था, इट वाज 1 लाख. अब इसमें हमने 40,000 तो निकाले ही निकाले हैं. ग्रेट. तो हमारे बैलेंस जो है अभी इट इज 60,000. So this is the debit balance. It will always be written on the credit side. क्योंकि हमने कहा कि it must get tallied. यहाँ भी देखो 1 लाख आ रहा है नीचे बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस में 1 लाख आ रहा है. कैसे, एक तो हमने 40,000 निकाले एंड द बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस इज रुपीज 60,000. ये अभी हमारा पैसा कहाँ, इट्स इन द बैंक. ग्रेट. तो हमने क्या किया कि पहले हमने डिपॉजिट किया था 1 लाख 40,000, we have withdrawn it from the bank and now we have 60,000 with the bank. Great. अब यहाँ पर क्या होगा, once we deposited 1 लाख, इसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था, और जब हमने 40,000 विड्रॉ की, इट विल बी रिकॉर्ड, बैंक विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड. तभी आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं से भी पैसे निकालोगे ना, मे बी थ्रू यूर ई पोर्टल, JNK, यानी जो उनका जो अपना ई पोर्टल दैट इज M-Pay, यू कैन यूज फोन पे, यू कैन यूज PayPal or MoneyPal, etc. etc. There are more number of online equipments and tools that you can use. Yeah, if you can withdraw it from the bank manually, या कहीं आप ATM से भी अपना कैश जो है ना आप इसको विड्रॉ करोगे. जैसे ही आप विड्रॉ करते हो अपने अकाउंट में, यू इंस्टेंटेनियसली गेट अ मैसेज दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड. आपके अकाउंट में अब डिक्रीज हो चुका है कितना, 40,000. कितना था आपके पास, पहले तो 1 लाख था, अब आपने 40,000 विड्रॉ किया. अब आपकी क्रेडिट बैलेंस वहां पर बढ़ चुकी है 60,000. और यहाँ पर भी कितनी बैलेंस दिखा रहा है, 60,000. इट्स बीन शोन कि यहाँ भी 60,000 दिखा रहा है और यहाँ भी 60,000 ही दिखा रहा है. नाउ द टू बुक्स आर गेटिंग बैलेंस्ड. यहाँ भी वही आ रहा है बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस वही आ रहा है. यानी पासबुक और यानी कैश बुक और पासबुक, they get mutually balanced, and at this situation there is no need to prepare BRS, bank reconciliation statement. If somebody will ask you why, because both the books are getting balanced and tallied. क्योंकि यहाँ भी बैलेंस कितना दिखा रहा है 60,000 और यहाँ भी बैलेंस कितना दिखा रहा है 60,000. यानी बैंक वाले कह रहे हैं यार आपका कितना पैसा हमारे पास
60,000, और हम खुद भी कह रहे हैं हमारा पैसा कितना है बैंक के पास, 60,000. दिस इंफॉर्मेशन इज बीन गिवन बाय द कैश बुक एंड दिस वन इज बीन गिवन बाय द पासबुक. So at this time, there is no need to prepare BRS bank reconciliation statement, क्योंकि हमने definition में ही पढ़ा कि when these two books get disagreed, तब disagree जब भी होंगे तो there is a need to prepare BRS, that is bank reconciliation statement. अब देखो हुआ क्या, now the next example. अब क्या हुआ, ग्रेट. अब हमें अपना लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. हमने तो डिपॉजिट किया था 1 लाख, वी हैव जस्ट विड्रॉन ₹40,000. तो हमारी बैलेंस यहाँ कितनी आ रही है, 60,000. यार हम तो यहाँ अपने बिजनेस में जो हमारा अकाउंटेंट वो कह रहा है कि हमारा पैसा कितना है, 60,000 है हमारे बैंक के पास, लेकिन बैंक यहाँ पर दिखा रहा है 50,000. नाउ द टू बुक्स आर गेटिंग नॉट बैलेंस, नॉट एग्री, there's a disagreement. There's an argument between these two books. अब देखो यहाँ पर बैंक तो कह रहा है यार आपका तो 50,000 ही हमारे पास, लेकिन हम तो हमारा खुद का अकाउंटेंट जो हमारे बिजनेस को एम को चला रहा है वो कह रहा है नो, वी डू हैव 60,000 इन द बैंक अकाउंट. नाउ दीज टू बुक्स हैव गॉट डिसएग्रीड, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर कितना बैलेंस आ रहा है, वी आर गेटिंग हियर 60,000 एज अ बैलेंस, लेकिन पासबुक हमें दिखा रहा नहीं यार 60,000 तो नहीं है हमारे पास, यू हैव ओनली 50,000 इन द बैंक. So now these two books have got disagreed, and at this time there is a need to prepare our BRS. और यही वो मुकाम है, यही वो कंडीशन है, यही वो सिचुएशन है where BRS is needed to be prepared, and it's essential because we need to get these two books balanced. क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों एक ही इवेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कितना डिपॉजिट कर रहे हैं और हम कितना विड्रॉ कर रहे हैं. एंड हमने क्या रूल पढ़ा कि जब दो बंदे, दो इंडिविजुअल्स, दो अकाउंटेंट्स, यहाँ पर हमारा अकाउंटेंट हो, यहाँ पर बैंक का अकाउंटेंट है, लेकिन इवेंट तो एक ही है, दोनों एक ही इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने पहले ही रूल पढ़ा कि जब दो बंदे एक ही चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट ऑलवेज मस्ट गेट टैलीड एंड बैलेंस्ड. बट व्हाई दिस डिफरेंस हैज ऑकर्ड? फॉर एग्जांपल, एक मैच चल रहा है किसी भी ग्राउंड में, देयर इज अ टीम नोन एज ए एंड वी हैव टीम बी. अब इन दो के बिटवीन एक मैच चल रहा है, इनका भी एक स्कोरर है और बी टीम का भी स्कोरर है, यहाँ भी एक स्कोरर से एक स्कोरर एक्स एंड स्कोरर वाई. अब जैसे ही ए टीम की पहली बैटिंग थी, नाउ जैसे ही उन्होंने ए टीम ने अपनी इनिंग्स को कंप्लीट किया, नाउ स्कोरर एक्स इज सेइंग दैट दे हैव सेट अ ट्यून अ टारगेट ऑफ रन्स 200 फॉर द बी. एट द सेम टाइम स्कोरर वाई इज सेइंग नो, इट्स 180. दोनों बंदे तो एक ही चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ही ग्राउंड में. It's obvious, it's logical, and it's rational that these both the scoreboards must get tallied. कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, यानी या तो यहाँ पर कोई चीज हमें ओमिट हुई है, कोई चीज हम भूल गए हैं बाय वाई, या तो इस वाले बंदे ने कोई चीज मैनिपुलेशन की है, कुछ रन्स एक्स्ट्रा अपने पॉकेट में से अडॉप्ट की हुई है अपनी टीम के लिए. So these things may happen, and similarly the case has occurred here. Either this accountant has forgotten something to write, or they have done something extra. कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल लॉ पढ़ा कि when two events occur, it must get tallied at the same time. जैसे मैंने आपको ट्रायंगल की एग्जांपल दी थी. Now let's look now what are the various reasons of these differences, why these differences occurred, कि ये differences आती क्यों हैं between cash book and passbook. One by one we will learn them, and then we'll prepare our BRS, bank reconciliation statement. Hope you are getting me. Okay, now look, great. Now this is my cash book, और ये कौन प्रिपेयर करता है? प्रिपेयर बाय द बिजनेस या बाय द इंडिविजुअल. And this is passbook, and it will be prepared by the bank. Great. Abhi let's assume कि we have rupees 1 lakh here and we have rupees 1 lakh here.
हमारे कैश बुक दिखा रहा है कि आपका 1 लाख है अभी बैंक में पड़ा हुआ, और बैंक भी कह रहा है कि यू हैव योर 1 लाख रुपीज हियर, तो दिस विल बी आवर डेबिट बैलेंस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम द बैंक विल शो इट एज अ क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बैंक के लिए तो ये कर्जा है, लेकिन हमारे लिए ये एसेट है। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, ऑल लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस। Great. Now look, the point number first, why this difference will occur. Number first, पहला point, checks deposited but not collected yet by the bank. अब अच्छे से सुनना, these are some critical points and very sensitive points that you must learn. अब देखो बेटा हुआ क्या, checks deposited but not yet collected by the bank. अभी हम यहाँ पर कौन सा बिजनेस था हमारा, M&Co। कोई डेटर था हमारा, कोई कस्टमर था हमारा, उसने हमें 10,000 की चेक दे दी। Great, we know that sometimes in spite of cash, instead of cash, we can receive the money worth in the form of bills and checks and other negotiable instruments. अब हुआ क्या कि एक बंदा है, say let's assume Z is any customer who has purchased goods from us, M&Co से उसने goods purchase किए और promise किया कि यार आप ये check ले लीजिए, after 10 days it will get converted into cash and it will get matured after 10 days. What we did, अब देखो हुआ क्या, जैसे ही हमने Z से ये check ले ली हमारे अकाउंटेंट ने, what he did, he went to the bank, वो बैंक के पास चला गया और उसने वहां पर इस चेक को डिपॉजिट किया। ग्रेट, कहा कि यार ये चेक जो है हमारे, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कैश आफ्टर 10 डेज, और 10 डेज के बाद इसको हमारे बिजनेस के अकाउंट में डाल देना। लेकिन जैसे ही वो अकाउंटेंट वापस चला आया बिजनेस में, उसने अपने घर में आकर इस 10,000 को कैश बुक में रिकॉर्ड किया, एंड वी फॉरगॉट एवरीथिंग। चेक हमने डिपॉजिट की बैंक में एंड वी सेड देम कि यार ये जो 10,000 है ना, इसको हमारे बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड कर देना। लेकिन जैसे ही अकाउंटेंट वापस चला आया, उसने अपने कैश बुक में इस 10,000 को प्लस किया, ऐड किया, डेबिट किया। तो हुआ क्या कि नाउ वी हैव गॉट हियर, एज पर आवर ओपिनियन, एज पर आवर थॉट, वी हैव अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,10,000 इन द बैंक। हमारा अकाउंटेंट कह रहा है कि हमारे पास कितने बैंक बैलेंस है, 1,10,000, क्योंकि 10,000 जो 1,00,000 पुराना हमारे पास ऑलरेडी थी बैलेंस, एंड 10,000 दिस इज द नेक्स्ट अमाउंट दैट वी हैव डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ चेक्स। लेकिन हुआ क्या, नॉट कलेक्टेड येट बाय द बैंक। 10 दिन तो गुजर गए, बट आफ्टर 10 days द चेक गॉट डिसऑनर्ड, इट वाज नॉट, it doesn't got converted into cash, and after 1 month we have received a bank statement. आफ्टर 1 month हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आ रहा है, यार आपकी बैलेंस जो है ना, इट्स द क्रेडिट बैलेंस इज रुपीज 1,00,000। लेकिन हमारा कैश बुक क्या दिखा रहा है, 1,10,000। यहाँ पर क्या बैलेंस दिखा रहा है हमारा बैंक, 1,00,000। नाउ द टू बुक्स हैव गॉट डिसएग्रीड। व्हाई? बिकॉज चेक्स डिपॉजिटेड, हमने चेक को डिपॉजिट किया था बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक येट। लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा ही नहीं आया। व्हाई? बिकॉज जिस बंदे ने हमें, इस जी ने जो चेक दी थी, दैट गॉट डिसऑनर्ड, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। एंड आफ्टर 10 days बैंक didn't get anything, बैंक के पास तो कुछ पैसा आया नहीं, तो why shall बैंक credit it in our account? तो बैंक कभी अकाउंट में हमारे डालेगा ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ लिया ही नहीं जेड से, क्योंकि जेड का अकाउंट तो खाली था, इट वॉज टोटली एम्प्टी एंड बैंक वॉज नॉट एबल टू गेट दिस मनी। अब हुआ क्या, देखो हमारा कैश बुक दिखा रहा है कि यू हैव 1,10,000। अकाउंटेंट उसने भी यार अपनी जगह से हिसाब तो कर रखा है, बट आवर कैश, दिस पासबुक इज शोइंग a balance of rupees 1,00,000. Why? Because the bank didn't get anything. उसको तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला from the Zard's account. अब now these two books have got disagreed, क्योंकि यहाँ पर कितनी बैलेंस आ रही है, 1,10,000, एंड यहाँ पर कितना आ रहा है, it's only 1,00,000. Now we need to prepare what?
we need to prepare, that is BRS. Because why? Because these two books have what? Disagreed. अब वो कैसे बनाते हैं, that we will learn. पहले आप ये सीख लीजिए कि what are the various logical reasons कि क्यों ये difference आ रहे हैं. This is the first point that you must pen down कि checks deposited but not yet cleared by the bank. So this is the first point that you must keep in mind. ये पहला point हमने याद रखना है. Now, the second example, the second logical reason is that, now I'm just going for the second reason. ये हमारे पास cash book है अभी भी. Now we have rupees 1 lakh again as per the cash book and as per the passbook. ये बैंक का हमारे पास है कैश बुक. ये कितना बैलेंस दिखा रहा है? 1 लाख, और यहाँ भी 1 ही लाख है. अब देखो होगा क्या आफ्टर. नाउ द सेकंड लॉजिकल रीजन व्हाई दिस डिफरेंस ऑकर्स, उसे हम कहते हैं CHEQUES, चेक्स इशूड बट not presented for payments. Checks issued but not presented for payments. What does this mean? यार देखो, हमारा कोई सप्लायर था या कोई क्रेडिटर था, मिस्टर वाई, वो हमारे पास आ चुका है. यार मेरा पैसा है आपके पास. व्हाट वी डिड, हमने उसको 10,000 की चेक दे दी. यार ये ले लीजिए, हमारे बैंक में जाना आफ्टर 10 days, so after 10 days you will get this money, और आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days. हमने किसको चेक दे दी? हमने एक सप्लायर को चेक दे दी जिसका नाम है वाई बिकॉज ही इज अ क्रेडिटर. उसका पैसा है हमारे पास, वी ओ हिम दिस मनी रुपीज 10,000. और जैसे ही वो हमारी फर्म से निकला ना, हमारा अकाउंटेंट व्हाट ही विल डू, उसने हमारे कैश बुक में से 10,000 तो क्रेडिट करने हैं, यानी माइनस करने हैं, क्योंकि उसके हिसाब से हमारे पास कितना पैसा बचा वहां पर अकाउंट में? 90,000. बट हुआ क्या? आफ्टर अ मंथ वी आर गेटिंग द बैलेंस फ्रॉम द बैंक कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय रुपीज 1 लाख. नहीं यार, आपकी तो 1 लाख यहाँ पर बैलेंस है, लेकिन हमारा अकाउंटेंट कितना दिखा रहा है? इट्स शोइंग दैट वी आर 90,000. व्हाई? चेक्स इशूड. जैसे ही हमने चेक इशू की हमारे अकाउंटेंट ने, एक सप्लायर को, एक क्रेडिटर को, उसने तो उसी टाइम डिडक्ट किया. ग्रेट. अब लेकिन हुआ क्या? बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ये जिस बंदे को हमने चेक दे दी, ही और शी हैज फॉरगॉटन अबाउट द चेक. वो गया ही नहीं अकाउंट पर, उसने इसको विड्रा ही नहीं किया. तो जब उसने विड्रा नहीं किया, तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट द बैंक विल जस्ट डिडक्ट दिस बैलेंस? तो बैंक इसको डेबिट तभी करता है दिस 10,000 जब ये बंदा वाई, अगर वो जाता हमारे अकाउंट में, हम किसी भी बैंक के ब्रांच पर, और वो ये 10,000 विड्रा करता कहीं से भी. लेकिन हुआ क्या है? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स. जिस बंदे को हमने ये चेक दे दी, ही और शी, उसने किसी भी ब्रांच पर विजिट ही नहीं किया, मतलब उसने इस चेक को एनकैश ही नहीं किया, लेकिन हमने घर में अपनी किताब में इसको डिडक्ट किया था. एज पर आवर ओपिनियन, एज पर द ओपिनियन ऑफ आवर अकाउंटेंट, ही इज सेइंग दैट हमारे पास तो बैंक में 90,000. हमने कहा कैसे? कहा कि हमारे पास पहले 1 लाख था. अच्छा, फिर हमने 10,000 की चेक वाई को दे दी, उसने तो विड्रा की हुई होगी. अब हमारे हिसाब से कितना रहा? वी जस्ट सी कि वी हैव 90,000 इन द बैंक अकाउंट. लेकिन बैंक हमें दिखा रहा है नहीं यार, आपका तो 1 लाख है यहाँ पर. वाई? बिकॉज दैट पर्सन didn't went any bank, didn't visit any bank, and he or she has not withdrawn any money from our bank account. So this is the second reason, checks issued but not presented for payments. So this is again a logical reason why there's a difference between the two books of accounts, that is the passbook and the cash book. Okay, number third. Now again, this is our cash book and this is our passbook. This is again prepared by the business. ये हमारा अपना घर का हिसाब है, and this is prepared by the bank. Great. Now point number third reason for this difference is payments BIREC, directly collected by the bank on behalf
of the business, on behalf of the business. Payments directly collected by the bank on behalf of the business. देखो होता क्या है, sometimes you have certain debtors, you have certain clients and customers, वो खुद ही जाते हैं अपने अकाउंट में से either through e-portal or manually he or she can visit a bank and can deposit cash into our bank account. तो हुआ क्या कि कोई भी बंदा से फॉर एग्जाम्पल एक्स हमारा कोई डेटर था, he or she owes us rupees 10,000. एक्स एक बंदा है, उसके पास ही owes us rupees 10,000. उसने हमसे गुड्स उधार पे लिए थे एम एंड को से, एम एंड को. अब हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम he has deposited this 10,000 into our bank account. After some time, after a few days, वो हमारे पास नहीं आया, उसने हमारे अकाउंट में इस 10,000 को डिपॉजिट किया. अब होगा क्या, बैंक वालों ने जैसे ही इस 10,000 को ले लिया, they will record it, they will credit it in our bank account. Now we have got 1,10,000 as a balance in the bank. अब बैंक में कितनी बैलेंस आ रही है, एक तो पहले 1 लाख जो था और 10,000 जो डायरेक्टली बैंक ने रिसीव किया है ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस फ्रॉम आवर डेटर्स, फ्रॉम आवर क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स. लेकिन हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं. इट्स अज्यूम्ड कि nowadays we are updated every minute and every second. We have now those digital mediums and means, but we just have to remind the time when this digital revolution was not there. तो यार यहाँ पर हमने एज्यूम करना है कि हमें पता ही नहीं कि हमारे अकाउंट में 10,000 आ चुके हैं. यहाँ पर अब बैंक बैलेंस यानी पासबुक दिखा रहा है यार आपके अकाउंट में तो 1,10,000 है. कैसे, 1 लाख तो था ही आपने जो डिपॉजिट किया था, लेकिन हमारा अकाउंटेंट घर में कह रहा है कि यार नहीं, हमारे पास तो बैंक में 1 ही लाख है. नाउ अगेन दीज टू बुक्स हैव गॉट डिसएग्रीड एंड दिस इज द रीजन. यही वो पोजीशन है वेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड दिस डिफरेंस इज टू बी रिमूव्ड. ग्रेट. अब आपने देखा होगा कि पॉइंट है क्या, डायरेक्ट यानी पेमेंट्स डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस. समटाइम्स बैंक आवर अकाउंट, the business, the bank that we are dealing with, the relationship we do have with the bank can directly sometimes collect money on behalf of the business from various number of customers and clients, etc., etc. And this is the third reason why the two books get disagreed. तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर लेगा, सो इट अगेन बिकम्स द रीजन व्हाई दीज टू बुक्स गेट disagreed. Now certain we again have this rupees 1 lakh into our bank account, and this is the cash book and this is the passbook. This cash book is prepared by the business. We must keep it in mind again and again. We must remind it. And this is prepared by the bank. Up now, look at the fourth reason why these two books get disagreed. So the fourth reason is direct payments made by the bank on behalf of the business, on behalf of the business. Direct payments made by the bank on behalf of the business. देखो हुआ क्या, हमारा बैंक अकाउंट तो है ही. What we did, we know we have opened a business, हमारे पास तो business है ही. We have M and Co. Great. After a few days, after a few months, we feel कि यार we have the threat of fire. यार आग लगने वाली है शायद. There are some natural calamities. There can be a flood. There can be a tsunami. There can be, many more calamities that may occur, that may happen. What we did, we went to any insurance company for doing insurance of the business, and we know कि जब भी हम insurance अपना business किसी भी business का या खुद का भी करते हैं life insurance, you are supposed to pay the premium after a fixed time period. तो monthly आपको company वाले कह रहे हैं कि यार हमें चाहिए आपसे premium 5,000 every month. आपका business काफ़ी बड़ा है and will secure it. Great. अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम we were manually visiting the company, the insurance company, and we were paying this amount.
अब हमें लगा कि यार इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस, कौन बार बार जाएगा वहाँ पर. व्हाट वी डिड, वी हैव जस्ट कलेक्टेड अ फॉर्म फ्रॉम देयर एंड वी हैव सबमिटेड दैट फॉर्म फॉर ऑटो डेबिट. अब हमने क्या कहा बैंक से, यार एवरी मंथ जस्ट डेबिट डिक्रीज 5,000 फ्रॉम आवर अकाउंट एंड जस्ट पुट इट इनटू द इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट. खुद ही आप हमारे अकाउंट में से 5,000 निकालना, वो कहाँ पर आप सबमिट करना, यस ये ₹10,000 एज अ प्रीमियम उसको इंश्योरेंस कंपनी के हवाले कर दे, उसकी अकाउंट में डाल देना. आफ्टर अ 1 मंथ व्हाट हैपेंड, देखो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस. अब हुआ क्या, आफ्टर अ मंथ, ग्रेट, अभी हमारी बैलेंस कितनी है, वी हैव 1 लाख हियर एंड इन द कैश बुक एज वेल. अब देखो हुआ क्या, आफ्टर 1 मंथ बैंक ने हमारे अकाउंट में से 10,000 तो डिडक्ट किया एंड दिस 10,000 वाज गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी. लेकिन हम भूल गए थे यार, हमने ऑटो डेबिट का फॉर्म वहाँ पर सबमिट किया हुआ है, लेकिन हमारा अकाउंटेंट अभी भी कह रहा है बंदा है हमारे पास 1 लाख है बिजनेस का बैंक में, लेकिन बैंक का स्टेटमेंट जैसे ही निकला वो कह रहा कि नहीं यार, यू हैव ओनली 90,000. Now we again got surprised. Why is this 10,000 and gone? And now it's the time to prepare our BRS, Bank Reconciliation Statement. Why? Again, these two books have what disagreed. And the reason is what? Direct payment made by the bank on behalf of the business. Yeah, one more example we can take here. यहाँ पर M and को तो चल रहा है. ग्रेट, अभी हमारे बिल्डिंग के इर्द गिर्द हमारी प्रीमिसेस में ही देयर इज एन ऑर्फनेज हाउस OH. हमने बैंक वालों से कहा यार एवरी मंथ, हर मंथ आप जस्ट डिडक्ट ₹1,000 एंड गिव इट टू दिस ऑर्फनेज हाउस. बट हम तो भूल गए खुद. अब हुआ क्या, इस 1 लाख में से मान लीजिए कि ये 1,000 कटा. Now we have 99,000 only, but our accountant is showing what 1 lakh because we have forgotten कि हमने यार वहाँ पर ऑटो डेबिट का फॉर्म सबमिट किया था for this OH for orphanage house. Great. So this is again a reason, the fourth reason why these two books get disagreed. So this is the reason number 4. So reason number 4 is the direct payment made by the bank on behalf of the business. This is Cashbook again, and this is Passbook. We have ₹1 lakh. Great, 1 lakh here. Oh, now reason number 5. Interest charged or expenses charged by the bank. Great. Sometimes when you take some facilities from the bank, you have to pay certain charges. Say हमने क्या किया था कि हमने लॉकर लिया था बैंक से, and as per the promise you are supposed to pay ₹1,000 every month. बैंक से हमने लॉकर की फैसिलिटी ली हुई है, तो आपसे कहा गया था कि every day, every month you are supposed to pay ₹1,000 as a locker charge. हुआ क्या, after 1 month the bank has deducted this 1,000 from our account and we don't know, we didn't get any information. 1,000 हमारे अकाउंट से तो निकला but we didn't know, हमें पता ही नहीं चला यार, क्योंकि we are not been informed. अब होगा क्या, यहाँ पर हमारा अकाउंटेंट स्टिल कह रहा है कि you have 1 lakh, लेकिन बैंक वाले कह रहे नहीं, you have 99,000 only. Why? Because 1,000 has been deducted from your account as a locker charge. So जब भी कोई इंटरेस्ट हो, कोई चार्ज हो, जब बैंक उसे चार्ज कर ले, उसे आपके अकाउंट में से डिडक्ट कर ले, तो आपकी पासबुक की बैलेंस जो है ना, इट विल गेट डिक्रीज्ड एंड योर कैश बुक बैलेंस इट विल स्टिल रिमेन कांस्टेंट. इस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा. एंड द लास्ट रीजन फॉर द डिसएग्रीमेंट इज interest or dividend collected by the bank on behalf of the business. This is the 6th reason, and there are many reasons, many more reasons. Interest or dividend collected by the bank on behalf of the business. On behalf of the business. अब हुआ क्या,
अब देख लीजिए, नाउ वी हैव डिपॉजिटेड 1 लाख इनटू द बैंक, और बैंक ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि यार अगर आप 1 लाख हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर लोगे और उससे छेड़खानी नहीं कर लोगे, यू विल डिपॉजिट इट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड यू विल गेट एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% एट एनी कॉस्ट। आपको हम ब्याज उस पर प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट देंगे, कितना, 10%। अब हमने 1 लाख तो डिपॉजिट किया एंड वी डिडंट विदड्रॉ एनीथिंग ड्यूरिंग दिस ईयर बिकॉज ऑफ कोविड-19, बिजनेस गॉट क्लोज्ड, तो हमने इसको विड्रॉ भी नहीं किया फॉर एनी रीजन जो भी था। अब हुआ क्या, आफ्टर वन ईयर तो अब बैंक ने आपको 10,000 इंटरेस्ट दे दिया। नाउ यू हैव गॉट इंटरेस्ट रुपीज 10,000 एज पर द प्रॉमिस मेड बाय द बैंक। नाउ बैंक इज शोइंग यू अ बैलेंस ऑफ रुपीज 1,10,000, लेकिन आपका खुद का अकाउंट नहीं यार, आपके अकाउंट में तो 1 ही लाख है, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव इंफॉर्मेशन। तो कैश बुक में हमने इसे रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन पासबुक में व्हाट, द बैलेंस हैज गॉट इंक्रीज्ड बिकॉज दिस इज अगेन अ लायबिलिटी फॉर द बैंक। एक तो ये लाख था ही, नाउ 10,000 हैज गॉट एडेड टू इट, so 1 lakh plus 10,000. Now we have, as per the passbook, we have 1,10,000 in the bank or as per the bank statement. लेकिन हमारा accountant अभी भी कह रहा है कि नहीं, you have only rupees 1 lakh, because why? Because we don't have any information. Great. Now these were some major reasons and causes of just bringing the difference between these two books of accounts. Great. अब यहाँ से हमने बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, दैट इज हाउ नाउ दिस बैंक रिकंसिलेशन इज डन, हाउ दिस रिकंसिलेशन इज बीन डन। अब इस रिकंसिलेशन को हमने करना कैसे है, एंड हाउ दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ इट्स फॉर्मेट लुक्स लाइक। ग्रेट, वो चीज हमने याद रखनी है। देखो, रिकंसिलेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा जिससे योर जॉब इज इट्स डन। से फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, दिस इज बास्केट ए एंड दिस इज बास्केट बी। ग्रेट, दिस इज बास्केट ए एंड बास्केट बी। This is basket A and this is basket B and these are some ice cubes. Great. जब हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, we have 1, 2 and 3 ice cubes. You have 1, 2, 3 and 4 ice cubes. यहाँ पर हमारे पास कितने ice cubes हैं? We have 3 and we have 4 here. तो आपको कहा जाता है कि यार इनको आप reconcile कर लीजिए, just make them balance, make them tallied. तो आप कैसे कर लोगे? हम यहाँ से भी रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं एंड यहाँ से भी रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। सो यू हैव बोथ ऑप्शंस। सो हियर यू नीड टू कीप अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माइंड दैट रिकॉन्सिलेशन कैन बी डन फ्रॉम बोथ द बुक्स। आइदर इट कैन बी डन फ्रॉम द कैश बुक और यू कैन डू इट फ्रॉम द पासबुक एज वेल। जैसे अगर मैं यहाँ से रिकॉन्सिलेशन कर लूँगा ना, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस बकेट, आई विल टेक दिस बास्केट। एक तो मेरे पास है ही 1, 2, 3, 1, 2 and 3. I will add one more ice cube, that is the 4. Now we have got 4 here and we have got 4 here. These two baskets have got tallied. These have got reconciled. This is what a reconciliation is known. अभी यहाँ पर तो 4 ice cubes थे, यहाँ पर तो 3 ही थे. Now these two baskets got disagreed. इसको हमने reconcile किस तरह से किया? We have added one more. So now these two have got reconciled. Now there is one more way to reconcile it. We can do it from the B, basket B. अब मैंने B basket ले लिया. Great. और B में हम क्या कर लेंगे? In the basket B, what we'll do? We have 1, we have 2, and we have 3 now. 1, 2, and 3. And this one I have removed. I have deducted. I have subtracted. इसको मैंने निकाला. Now we are left with 3 only. Now again 3 here in basket A and basket B. Again we're left with 3. Wait guys, just keep this in mind कि we can do reconciliation from both the sides. जैसे मैंने आपको practically I've just given you this example. हम यहाँ से भी reconciliation कर सकते हैं और यहाँ से भी reconciliation कर सकते हैं. The same approach, the same methodology is going to be followed where
in the BRS, the bank reconciliation statement. Great. Now we have methods. Now look, reconciliation करने से पहले ये चीज आपने बहुत ही important जो है याद रखनी है. That is, this is our cash book. This is debit, that is plus, and credit here it's minus. Here we have passbook. This is debit, minus, and this is credit, that is plus. सबसे पहले हमने याद रखना है FAVOURE, फेवरेबल बैलेंस हम किसे कहते हैं? Favorable balance. Great. Now look at the term favorable balance. A favorable balance in literal terms is a balance which favors a client or an account holder. यानी जब भी, चाहे कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से, जब भी आपका पैसा बैंक में हो, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना हो, 20,000 ही क्यों ना हो, 30,000 ही क्यों ना हो, 40,000 क्यों ना हो, यानी when as per the पासबुक, जब आपकी बैलेंस, आपका पैसा बैंक में हो ना, when you have deposited extra what you have withdrawn from the bank. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि हमने 1 लाख तो डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में, पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी, and we have withdrawn say 40,000. now we have 60,000 with the bank. this is our debit balance, क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है. डेबिट बैलेंस एज पर द, दिस इज कैश बुक. लेकिन जब इसी चीज को हम रिकॉर्ड कर लेंगे कहाँ पर, पासबुक में, विल रिकॉर्ड इट एज अ क्रेडिट. तो यहाँ पर हमारी बैलेंस कितनी आ रही है? 60,000. सो दिस 60,000 एज पर पासबुक, बैंक कह रहा है कि आपका पैसा कितना है मेरे पास, योर 60,000 इज विद अस. हम भी कह रहे हैं अपने घर में, अपने कैश बुक में, कि हमारा 60,000 है किसमें, बैंक में. सो दिस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, or at the same time it will be recorded opposite in the passbook, or credit balance as per passbook. Debit balance as per debit balance, ये वाली balance, this is the debit balance. Debit balance will always be written on the credit side, and credit balance will always be written on the debit side. Debit balance as per passbook and credit balance as per the, debit balance as per cash book and credit balance as per the passbook, we call it favorable balance that favors a client or an account holder. It simply means कि आपका पैसा अभी बैंक में है, favorable balance, or debit balance as per cash book, or credit balance as per, debit balance as per cash book and credit balance as per passbook. क्योंकि बैंक इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉर्ड कर लेगा. फॉर बैंक इट्स द लाइबिलिटी, फॉर वी इट्स एन एसेट. जब हम विड्रॉ कर लेंगे कि हमारा एसेट डिक्रीज हुआ इतना 40,000 और बैंक की लाइबिलिटी इतनी डिक्रीज हुई, अभी बैंक के पास कितना बचा लाइबिलिटी हमारी 60,000 और हमारा एसेट कितना बचा बैंक में, दैट 60,000. इस बैलेंस को हम कहते हैं कि इट्स ए फेवरेबल बैलेंस. नाउ वी हैव वन मोर जिसे हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, इसकी अपोजिट एक्चुअली. तो फेवरेबल बैलेंस याद रखना है कि फेवरेबल बैलेंस मीन्स व्हेन वी डिपॉजिटेड एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू व्हाट वी हैव विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक. ग्रेट. उसके बाद है अनफेवरेबल बैलेंस. अनफेवरेबल बैलेंस, और जिसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मीन्स व्हेन यू हैव डिपॉजिटेड लेस एंड विथड्रॉन मोर. हमने 1 लाख बैंक में डिपॉजिट किया था, अभी जो मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, बट वी नीड मोर मनी फ्रॉम द बैंक एंड वी हैव विथड्रॉन रुपीज 1,10,000. सो दिस 10,000 इज सेड टू बी व्हाट, दिस इज एन ओवरड्राफ्ट. इसे हम कहते हैं अनफेवरेबल, ये क्योंकि ये हमारे लिए अब कर्जा है, एंड फॉर बैंक इट इज एन एसेट. दिस 10,000, इसकी हम बात कर रहे हैं. या सिंपली मैं कहूँ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. अभी उस वाले फेवरेबल में थी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आई कैन सी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. वहां पर हो गई बट
डेबिट बैलेंस, क्योंकि अब बैंक के लिए 10,000 हमारे पास उनका एसेट है 10,000 और हमारे पास अब ये क्रेडिट बैलेंस होगी, अब हमारे पास ये कर्जा होगा, तो इसे हम कहते हैं क्या, अनफेवरेबल बैलेंस. सो these were two important points that you are supposed to keep in mind before making the BRS, bank reconciliation statement. Great. तो now फॉर्मेट की पहले हम बात करते हैं. फॉर्मेट, हाउ BRS looks like. ऊपर मैं लिखूंगा बैंक reconciliation statement. There are 4 to 5 methods through which you can make this bank reconciliation statement. Like we have plus and minus, we have positive and negative, we have add and subtraction method, we have debit and credit, and the most common method that's usually been followed in accounts is this plus and minus method that I'll show you, and definitely it works a lot and it's easy to do and remember. बहुत इजी है ये करना, बिल्कुल कुछ भी नहीं, जैसे हमने अभी बास्केट में प्लस और माइनस किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है. दिस इज सीरियल नंबर, दिस इज particulars, or you can use here items as well, whatever you feel feasible. This is the plus and this is minus. तो what I said before you कि you can do it from both the books. अगर आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, यानी if you are doing your bank reconciliation statement from the cash book, then you will write the first item, that is balance as per cash book. अभी मैं उसका practical भी आपको दिखाऊंगा. If it's a debit balance will be written here and credit balance will be written on the minus side. Then you will write down the cause of difference. कौन कौन सा वजह था कि कौन कौन से reasons थे why this difference has occurred. Now I'll give you a practical question. So this is the format that you're going to use. You have serial number, you have particulars, you have plus and you have minus. Now we'll do a practical question and we'll make this BRS, yani bank reconciliation statement. Now look, what is the input? You have cash book balance rupees 1,500 and we have passbook balance rupees 2,000. देखो क्या दिखा रहा है कि यार आपका कैश बुक कितनी बैलेंस दिखा रहा है 1,500 and your passbook is showing a balance of rupees 2,000. Now these two books have got disagreed. Now it's the time to make bank reconciliation statement. Why? Because these two books have got disagreed. अब देखो कौन कौन सा पॉइंट था जिससे डिसएग्रीमेंट हुआ है. नंबर फर्स्ट, DIRECT, डायरेक्ट पेमेंट received by bank rupees 300. बैंक ने कहीं से हमारे कस्टमर से डायरेक्टली 300 तो ले लिए, लेकिन कैश बुक में हमें अभी इसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ है. नंबर सेकंड इज इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बैंक रुपीज 300 डायरेक्टली, और इंटरेस्ट भी बैंक ने खुद ही रिसीव किया विदाउट इन्फॉर्मिंग अस एंड वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन. एंड द थर्ड रीजन इज, जिसकी वजह से ये हुआ, is interest, locker charges rupees 100. So these are three reasons why this difference has occurred. Why this difference have occurred. एक तो कैश बुक दिखा रहा है यार आपके बैंक में, यार हमारा अकाउंटेंट कह रहा है कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, वी हैव ओनली 1500 लेफ्ट, बट द बैंक इज शोइंग नो यू हैव 2000 सॉरी. अब हमने क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर द BRS एंड द रीजन ऑफ डिफरेंस आर दीज पॉइंट्स. वी हैव मेड सम एरर्स एंड मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग दीज. नाउ आई विल ड्रॉ दिस फॉर्मेट फर्स्ट.
this is serial number, this is particulars, this is plus and this is minus. Great. Now आप अभी मैंने कहा था आपसे कि आप कहीं से भी बैलेंस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना सकते हैं. जब हम कहते हैं ब्रांड रिकॉन्सिलेशन से यू नीड टू प्रिपेयर, यू हैव टू फोकस विद योर ब्रांड. यहाँ से भी बना सकते हैं और यहाँ से भी. जैसे मैंने आपको बास्केट ए और बास्केट बी की एग्जांपल दी थी. नाउ वी विल प्रिपेयर इट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द कैश बुक फर्स्ट. तो पहले सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बैलेंस एज पर कैश बुक. हमारा कैश बुक कितनी बैलेंस दिखा रहा है. अगर आप यहाँ से बनाओगे पासबुक से तो विल राइट बैलेंस एज पर पासबुक. सो बैलेंस एज पर कैश बुक इज हाउ मच, इट्स 1500. हमारा कैश बुक कितना दिखा रहा है और आपका पैसा कितना है बैंक में, अभी 1500 ही है. दिस इज फेवरेबल बैलेंस, डेबिट बैलेंस. अब नाउ वी हैव टू लुक एट दीज काजेस कि यहाँ पर हमने इसको ऐड करना है कि प्लस करना है कि माइनस करना है. ग्रेट. तो अब देखो होगा क्या कि नाउ this is my cash book CB and this is our passbook PB. Great. अभी हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1500 और यहाँ पर भी 1500 ही है. अब देखो हुआ क्या, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय द बैंक. बैंक ने कहीं से किसी भी क्लाइंट से, हमारे कस्टमर से खुद ही 300 ले ली. यानी हमारा कोई क्लाइंट होगा, कोई कस्टमर होगा, उसने डायरेक्टली डिपॉजिट किया हुआ है हमारे अकाउंट में. अब देखो होगा क्या, जैसे ही उसने डिपॉजिट किया होगा कहाँ पर, हमारे बैंक अकाउंट में, तो इसकी पासबुक की बैलेंस प्लस इंक्रीज हुई होगी बाय 300. एंड द रूल इज, अगर आप यहाँ से BRS बनाओगे, यू हैव टू लुक एट योर अपोजिट, यू हैव टू लुक एट दी टारगेट बुक, जहाँ से आप, जिसके लिए आप BRS बना रहे हैं. तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया कैश बुक से हमारा BRS. लेकिन हमारी टारगेट बुक में क्या हुआ है, दीज 300 हैज गॉट इंक्रीज्ड, क्योंकि बैंक वालों ने तो 300 ले लिया हमारे क्लाइंट से, जिसने भी ट्रांसफर किया. यहाँ पर ये ऐड हुआ होगा कि यहाँ पर कितना होगा, एक तो 1500 जो था ये हमारा प्लस 300 द बैंक हैज रिसीव्ड फ्रॉम आवर क्लाइंट. अब जब हम BRS बना, देखो अगर हमने इन दो बुक्स को सेटिस्फाई करना होगा, जैसे मैंने आपको आइस क्यूब्स की एग्जांपल दी थी, अगर यहाँ से कर लेंगे ना तो वी विल ऐड अप हियर अगेन दीज 300. यहाँ भी हम इस 300 को ऐड ही कर लेंगे, तभी तो ये दो बुक्स क्या हो जाएंगे, रिकॉन्साइल. वी हैव टू एग्री देम. तो मैं सीरियल नंबर 1 पे यहाँ पर लिखूंगा कि डायरेक्ट DIRECT, डायरेक्ट PAYMENTS, डायरेक्ट पेमेंट्स received by the bank, and I'll write the amount 300 on the plus side. Why? Because यहाँ ये प्लस हुआ है, यहाँ भी हम प्लस कर लेंगे. ग्रेट. दिस इज द फर्स्ट रीजन ऑफ डिफरेंस. ये मैंने आपको पढ़ा है कि डायरेक्ट पेमेंट मेड रिसीव्ड बाय द बैंक. अब नाउ सेकंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बैंक आफ्टर, जैसे मैंने 1 लाख की एग्जांपल दी थी एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10. हुआ क्या, आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू डेज बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया और हमारे अकाउंट में डाला खुद ही, एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, नॉट रिकॉर्डिंग द कैश, को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था. जैसे ही बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो ये हमारे अकाउंट में यहाँ पर ऐड होगा. एक तो 1500 इट वाज अर्लियर, और बैंक हमें अभी सूद के तौर पर और 300 दे रहा है, उसने खुद ही हमारे अकाउंट में इसे डाला है, बट वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड. यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस. हे गाइस जस्ट लिसन, यहाँ पर जो चीज ऐड होगी ना वो यहाँ पर भी ऐड होगी, बिकॉज वी हैव टू मेक एन एग्रीमेंट, वी हैव टू जस्ट मेक ए म्यूचुअल कंसेंट, वी हैव टू मेक देम सेटिस्फैक्टरी. अब यहाँ भी ऐड हुआ है, अगर इसको हमने यहाँ पर भी रिकॉन्साइल करना है, व्हाट विल डू, विल ऐड इट हियर again 300. So we'll write the second point, interest received by the bank. Hey, 300. याद रखना है, अगर टारगेट बुक में कोई चीज इंक्रीज होगी यहाँ भी इंक्रीज होगी, अगर टारगेट बुक में कोई चीज डिक्रीज होगी यहाँ भी डिक्रीज होगी. दिस इज द सेम सिंपल फिनोमेना एंड दिस इज द कॉमन सेंस एंड लॉजिक दैट यू नीड टू अप्लाई. सो दिस अगेन वी हैव एडिटेड. नाउ थर्ड वन, लॉकर चार्जेस 100. हमारी बैलेंस लेट्स अज्यूम की थी कितनी, 1500 इन द बैंक. अब कह रहा है कि बैंक में आपने लॉकर तो ले लिया है, आफ्टर 1 मंथ यू आर गोइंग टू बी चार्ज फॉर द सेम. अब हुआ क्या, बैंक ने हमारे अकाउंट में से 100 डिडक्ट किया है. व्हाई, बिकॉज ऑफ लॉकर चार्ज ऑफ ₹100. अब कितनी बैलेंस होगी यहाँ पर हमारी,
1400, यहाँ पर 100 डिडक्ट हुआ है और यहाँ भी क्या कर लेंगे, ग्रेट, आई टोल्ड यू, जो चीज़ यहाँ ऐड होगी वो यहाँ भी ऐड होगी, जो चीज़ यहाँ डिडक्ट होगी यहाँ भी डिडक्ट होगी, एंड अगेन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर. सो पॉइंट नंबर थर्ड, LOCKER, लॉकर चार्जेस, CHARGS, इसको हम यहाँ लिख लेंगे माइनस में. नाउ लेट्स गेट टोटल. This is 15 plus 3 and plus 3. This is 15 plus 3 is 1800 and plus 3. This is 2100. 2100 बन रहे. यहाँ भी हम लिखेंगे 2100 टोटल में. तो यहाँ पर हमारी बैलेंस एज पर पासबुक निकलेगी अब. So when you will deduct from 2100 rupees 100, you will get this 2000 and as the balance, जो हमें यहाँ पर हमारा पासबुक दिखा रहा था कि आपकी बैलेंस 2000 है, और वही 2000 की बैलेंस अब हमें यहाँ भी निकली. 1500 plus 300 is 18, plus 300 is 21, minus 100 is 2000. Now both the books have got balanced, and this is how a BRS is. इसे ऊपर टाइटल लिख लेना, BRS, Bank Reconciliation Statement. Hey guys, hope you might have enjoyed this lesson. It was tough maybe or boring, but it's a crazy topic. You must learn it by heart. If there's any doubt, you can just put into the comment section. Maybe I'll try my best in the next video and we'll do more practicals for the same topic. Thanks a lot for supporting us. Do share, do keep supporting your brother as much as you could.